Hello, student. My name is Professor Prakash Vasankar, author engineering mathematics first, second, and third. Also, I write books for class 12, mathematics part first and part second. Today, we prove one theorem in chapter, and name of the chapter is Circle for 11th Standard. In this video, we find the equations of the tangent to the general circle. And we know that the general equations of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. This is the general equations of the circle. And for this circle, we find the equations of the tangent for this circle. We find the equations of the tangent at point p x1 y1. So here first we write here the given equations of the circle, and given equations of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy. So first we write the given equation of circle is, we write here the given equations of circle, and here the given equations of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c. This is the given equations of the circle. And we find the equations of the tangent to this circle at point p x1 y1. So first we find here the slope of the tangent. That is we find here the dy by dx. That is the differentiate this equation with respect to x. So here differentiate both sides with respect to x. Here differentiate both sides with respect to x. Then here ddx of this LHS, that is differentiate LHS with respect to x. So we write here ddx of LHS, d by dx of LHS, that is the left hand side, and here left hand side is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to derivative of right hand side, and in RHS 0 is present, and we know that ddx of 0 is here 0. Then we use here addition rule, and we find here the derivative of the LHS. We use here addition rule in derivative. We know that the addition rule in derivative ddx of u plus v is equals to du by dx plus dv by dx. Similarly here ddx of x square, here right, x square, that is we use here addition rule, so ddx of x square plus ddx of y square. So we write here ddx of y square plus here 2g constant, this 2g constant, therefore 2g here as it is. Then we write here ddx of x. So we write here d by dx of x, ddx of x plus here this 2f constant, so 2f as it is, 2f as it is. Then we find here ddx of y, and ddx of y is dy by dx. So right here dy by dx plus ddx of this constant term c.
So ddx of constant term, and here constant term is c is equals to 0. Use here addition rule in derivative. When now that the addition rule in derivative, ddx of u plus p is equals to du by dx plus dv by dx. So by using the addition rule, ddx of x square plus ddx of y square plus 2g constant ddx of x plus 2f constant ddx of y plus ddx of c equals to 0 as it is. Then in the next step, we find here the derivative. So whenever the ddx of x square 2x, because here we use the formula ddx of x to the power n x to the power n minus 1, यानी यहाँ पे आपको x स्क्वायर की डेरिवेटिव निकालने की है, और x स्क्वायर की डेरिवेटिव निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है ddx of x to the power n x to the ddx of x to the power n x to the power n minus 1, यानी पावर का जो n है वो आपको नीचे लेने का है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करने का है. तो यहाँ पे वैसा ही है, 2 नीचे लेंगे, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ पे x आ जाएगा. So we write here 2x, we write here 2x plus, similarly we find ddx of y square. Here we use the formula ddx of fx to the power n fx to the power n minus 1 into f dash of x. So by using this formula, 2y into derivative of y, that is dy by dx, is the derivative of y, plus this 2g as it is, this 2g as it is, ddx of x, again this is the standard result, and we know that ddx of x is 1, so right here 1 into 1 plus this 2f as it is, so we write here 2f dy by dx, this dy by dx here as it is, dy by dx as it is, plus ddx of c, and c is constant term, and we know that the formula ddx of k equals to 0 where k is constant. Similarly ddx of c equals to 0 because c is constant is equals to 0. That is, in this step we find here the derivative with the help of the standard result. So we write in the next step here 2y into dy by dx and 2f into dy by dx. From this dy by dx take common and 2 take common again. So we write here from this, that is 2y into dy by dx, 2f into dy by dx. From this 2 take common, so here 2 common. In bracket here y plus f, so write y plus f. Into here dy by dx, again take common, so write here dy by dx is equals to, again we repeat this, 2y into dy by dx, 2f into dy by dx. From this 2 and dy by dx take common, so here 2 take common, dy by dx take common, then the remaining terms are y plus f, so right here y plus f is equals to 2x here and here 2g into 1, that is 2g. So from this 2 take common, यानी आपको यहाँ पे 2x और 2g ये जो टर्म है अब ये लेफ्ट साइड के अंदर है, तो उसको राइट साइड में लेके जाने का है, और राइट साइड में लेके जाने के बाद में उसकी साइन चेंज हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा, और ये 2g राइट साइड में जाने के बाद में यहाँ पे हो जाएगा -2g, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसमें से -2 कॉमन निकालने का है, -2 क्या करने का है, कॉमन निकालने का है. तो LHS एज इट इज, ये LHS आपको जैसी है वैसी ही लिखने की है, और राइट साइड में से -2 कॉमन निकालने के बाद में इन ब्रैकेट यहाँ पे x plus g आता है, so we write here x plus g because -2 is common.
Then in the next step, divided both sides by 2. आपको दोनों साइड को 2 से डिवाइड करने का है, तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 2 कैंसिल होने के बाद में यहाँ पे रहेगा y प्लस f into dy by dx. So here y plus f into dy by dx as it is equals to, ये 2 2 कैंसिल होने के बाद में यहाँ पे रहेगा माइनस x प्लस जी। सो राइट हियर माइनस, और ये x प्लस जी यहाँ पे रिमेनिंग है। So x plus g here as it is. Then in the next step, from this we find dy by dx. इसके ऊपर से आपको dy by dx निकालने का है. So we find here dy by dx. dy by dx is equals to this minus sign as it is, x plus g as it is in right hand side, x plus g as it is, और ये टर्म राइट साइड में जाने के बाद में ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा y प्लस एफ, यहाँ पे आता y प्लस एफ आ जाएगा, यहाँ पे y प्लस एफ। अब आपको क्या करने का है, ये स्लोप एट पॉइंट p x1 y1 निकालने का है। वी फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट p x1 y1, ये पॉइंट यहाँ पे है। So we find first here the slope of the tangent at point p x1 y1. So we find here slope of tangent at point p x1 y1. So यहाँ पे we find here dy by dx at point p x1 y1. So here dy by dx at point p x1 y1. यहाँ पे कैपिटल P देने का आपको, और ब्रैकेट के अंदर x1 y1, because here we find the slope of the tangent at point p x1 y1, तो यहाँ पे आपको p x1 y1 फाइंड आउट करने का, dy by dx at point p x1 y1. so here x changes to x1 हो जाएंगे अपने यहाँ पे, तो x changes to x1, और यहाँ पे y changes to y1, because we find the slope of the tangent at the point p x1 y1. This is the slope of the tangent, and we know that slope is denoted by m. So we write here m. So is denoted by m. So we write here m. This is the slope of the tangent. But our aim is here to find out the equations of the tangent to the circle at the point p x1 y1. यानी आपको क्या करने का है, एक जनरल इक्वेशन है, दिस इज द, ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशंस ऑफ द सर्कल, इसको एक टेंजेंट निकालने का है एट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन, और वो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का है। तो एक स्ट्रेट लाइन 11th स्टैंडर्ड के अंदर एक स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर है, उसके अंदर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। We know that the equations of the line passing through the point p x1 y1 having slope m is y minus y1 is equals to m x minus x1. तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपको यहाँ पे यूज करने का है। So we write here, we know that ये आपको 11th स्टैंडर्ड के अंदर मालूम है, स्ट्रेट लाइन के अंदर। We know that the equation of tangent, equation of tangent having slope m, having slope m and passing through the point, passing through the point p x1 y1, ये पॉइंट है वो, and passing through the point p x1 y1 is, write here the standard formula, and that formula is y minus y1, y minus, आपको ये y कोऑर्डिनेट लिखने का है, तो ये है y1
is equals to slope of the line, that is m, in bracket we write x minus आपको यहाँ पे x1 लिखने का है, so we write here x1. This is the standard result. We already learned this standard result in 11th standard, and name of the chapter is straight line. So from these equations, we write here the equations of the tangent to the given circle at the point px1 y1. यानी ये point px1 y1 और ये point px1 y1 यहाँ पे सेम है. तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, तो टेंजेंट का स्लोप सिर्फ चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे यम जो है ना, ये यम की जगह पे आपको ये लिखने का है माइनस x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस यम. We get and by solve this we get the required equations of the tangent. So here we write required equation of tangent. Required equation of tangent is, ये इक्वेशन आपको जैसा है वैसा ही लिखने का है. इसके अंदर यहाँ पे जैसा का वैसा ये लिखने का है. सिर्फ ये जो यम है, ये यम यहाँ पे चेंज होएगा. यम को आपको बदल पे यहाँ पे लिखने का है माइनस x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस. और अब इसको सॉल्व करने का है, और सॉल्व करने के बाद में आपको जो भी टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का है वो आपको मिलता है. तो इसके बाद में इसका सिंप्लीफिकेशन करने का है. अब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए y माइनस y1 ये एज इट इज, ये जैसा का वैसा ही लिखने का है आपको. तो इन वन ब्रैकेट मैं राइट हियर y माइनस y1 ये लिखने का है. एक ब्रैकेट के अंदर आपको y माइनस y1. इन द नेक्स्ट ब्रैकेट ये y1 प्लस f, यानी ये टर्म राइट हैंड साइड के अंदर डिनोमिनेटर में है, इसको आपको लेफ्ट साइड में लेके जाने का है, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा. इज इक्वल्स टू this minus sign as it is, so right here minus sign, then in bracket यहाँ पे आपको लिखने का है x1 plus g, so right here x1 plus g. उसके बाद में x minus x1 as it is, so right here x minus x1 as it is. यानी ये टर्म के अंदर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये जो टर्म थी y1 प्लस ये अपन लेफ्ट साइड में लेके गए. तो इधर ये डिनोमिनेटर में है, तो लेफ्ट साइड के अंदर ये न्यूमरेटर में आ जाएंगे. सो y माइनस y1, तो यहाँ पे y1 प्लस f इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस g इनटू x माइनस x1. एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप by simplify here the bracket. अब आपको ये टर्म के नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये ब्रैकेट सॉल्व करने के हैं. तो अब ब्रैकेट कैसे सॉल्व करने के हैं, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट y इंटू y1 प्लस f, यानी ये y है ना, ये y से आपको ये y1 प्लस f को मल्टीप्लाई करने का है. सो वी राइट हियर y इंटू y1 प्लस f. उसके बाद में ये माइनस y1 आपको लिखने का है यहाँ पे, ये जो है ना माइनस y1, ये यहाँ पे अपन लिख देंगे, ये आ गया माइनस y1. उसको आपको y1 प्लस f से मल्टीप्लाई करने का है, तो वी राइट हियर y1 प्लस f, ये यहाँ पे लिख दिया. अब ये टाइप से आपको राइट साइड में सॉल्व करने के ये दो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ईयर माइनस x1 एज इट इज, तो आपको यहाँ पे माइनस x1 लिखने का है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन. उसके बाद में x1 और x1 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का है, ये ब्रैकेट इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखने का है. नेक्स्ट ईयर माइनस g इंटू माइनस g into this bracket, that is x minus x1, so right here minus g into bracket ये आ गया x minus x1. यानी ये स्टेप के अंदर सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व किए, बाकी कुछ भी नहीं किया. नेक्स्ट स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन मल्टीप्लाई दिस y टू ईच टर्म इन दिस ब्रैकेट. तो आपको पहले क्या करने का है, y से y1 को मल्टीप्लाई करने का है. सो हियर वी राइट y multiplied by this y multiplied by y1, so we write here y1 plus, और y से f को मल्टीप्लाई करने का है, तो ये आ जाएगा fy, so we write here fy. In the next step here this minus y1 multiplied by y1,
सो वी गेट माइनस वाई वन स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस वाई वन को आपको स्क्वेयर लिखने का है, ये माइनस और ये वाई वन का यहाँ पे स्क्वेयर आ जाएंगे, वाई वन और इसका स्क्वेयर लेने का है माइनस वाई वन स्क्वेयर। अगेन मैं रिपीट दिस स्टेप, माइनस वाई वन इंटू वाई वन माइनस वाई वन स्क्वेयर। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आता है। उसके बाद में एफ इंटू वाई वन, सो राइट हियर एफ इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, अब राइट साइड सॉल्व कर देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स वन इंटू एक्स, सो माइनस एक्स, और ये जैसा माइनस एक्स लिखा उसको एक्स वन से ये मल्टीप्लाई करने का है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स वन। उसके बाद में दिस नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, सो राइट हियर पॉजिटिव एक्स वन स्क्वेयर, हियर एक्स वन स्क्वेयर इज एक्स वन स्क्वेयर। उसके बाद में अब माइनस जी से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का है, सो माइनस जी इंटू एक्स, राइट हियर माइनस जी एक्स, ये आता है। उसके बाद में अगेन हियर नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाता है, जी इंटू एक्स वन जी एक्स वन, सो राइट हियर जी एक्स वन। तो ये टाइप से यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर दी। तो अपना एम क्या है? So in this theoretical questions, we find the equations of the tangent to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 at the point p x1 y1। यानी जनरल इक्वेशंस, जो स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशंस है सर्कल का, वो आपको गिवन है और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का है at point p x1 y1। Remember that point p x1 y1 is the point of contact of the tangent and the circle। उसके बाद में और इसको सॉल्व करने का है, तो ये जो है ना माइनस एक्स वन माइनस एक्स एक्स वन ये राइट साइड में है, तो इसको अपन लेफ्ट साइड में लेके जाने के बाद में ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको लेके आता मैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड के अंदर, प्लस वाई इंटू आई वन एज इट इज, प्लस वाई इंटू वाई वन एज इट इज। उसके बाद में ये माइनस जी एक्स है, ये आपको लेफ्ट साइड में लेके जाने का है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड में लेके जाने के बाद ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, जैसा ये वाला। ये जो है ना माइनस जी एक्स, इसको आपको लेफ्ट साइड में लेके जाने का है, तो ये आ जाएगा प्लस जी एक्स, ये हो गया प्लस जी एक्स। उसके बाद में ये एफ आई लिखने का है, एफ आई एज इट इज, सो दिस प्लस एफ आई एज इट इज। ये जी एक्स लिख लिया, उसके बाद में प्लस एफ वाई लिख लिया, उसके बाद में एक्स वन स्क्वेयर, ये एक्स वन स्क्वेयर राइट साइड में लिखने का है आपको, ये यहाँ पे राइट साइड में एक्स वन स्क्वेयर एज इट इज, ये एक्स वन स्क्वेयर यहाँ पे एज इट इज। उसके बाद में ये माइनस वाई वन स्क्वेयर है, ये राइट साइड में लेके जाने का है, तो ये राइट साइड में लेके जाने के बाद में ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस वाई वन स्क्वेयर। उसके बाद में आपको क्या लिखने का है, तो ये जो है माइनस एफ वाई वन ये राइट साइड में लेके जाने का है, तो ये प्लस हो जाएगा, सो फर्स्ट वे राइट हियर प्लस जी एक्स वन। उससे पहले अपन यहाँ पे प्लस जी एक्स वन लिखेंगे। उसके बाद में एफ वाई वन ये राइट साइड में लेके जाने का है, तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस एफ वाई वन। ओके, अगेन वी रिपीट दिस, माइनस एक्स एक्स वन लेफ्ट साइड में लेके गई, ये पॉजिटिव हो गए, तो ये एक्स एक्स वन हो जाएगा, प्लस वाई वाई वन। उसके बाद में ये माइनस जी एक्स है, ये लेफ्ट साइड में लेके आए तो ये पॉजिटिव होता है। उसके बाद में प्लस एफ वाई एज इट इज इक्वल्स टू एक्स वन स्क्वेयर एज इट इज, माइनस वाई वन स्क्वेयर ये राइट साइड में लेके जाने के बाद में यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस वाई वन स्क्वेयर, दिस प्लस जी एक्स वन एज इट इज, माइनस एफ वाई वन ये राइट साइड में लेके जाने के बाद में
ये यहाँ पे पॉजिटिव। तो अगर इसके अंदर यहाँ तक तो मेरे ख्याल से मैंने डीपली इसको एक्सप्लेन किया है, तो आपको तो कोई डिफिकल्टी नहीं रहेंगी। उसके बाद में ये जो राइट साइड का इक्वेशन है, इसको आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने का है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर आपको जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी दोनों साइड में ऐड करने का है। क्या ऐड करने का है आपको? जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी, ऐड बोथ साइड्स, ऐड बोथ साइड्स जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी, ये दोनों साइड में ऐड करने का है, यानी एलएचएस में भी ऐड करने का है और आरएचएस में भी ऐड करने का है। क्यों करने का है? तो आरएचएस के अंदर स्टैंडर्ड इक्वेशन लाने का है। स्टैंडर्ड इक्वेशन बोले थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, यानी स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन लाने का है। तो ये जो स्टेप है, ये आपको इसके दोनों साइड में सिर्फ ये ऐड करने का है, जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी, इसको एलएचएस में ऐड कर देंगे, ये होगा एलएचएस में ऐड। इसके साथ आपको इसमें आरएचएस में भी ऐड करने का है, तो इसको आरएचएस में भी ऐड कर दिया ये स्टेप के अंदर। जैसा एलएचएस के अंदर जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी यहाँ पे ऐड किया मैंने, ये वाला ये यहाँ पे ऐड किया। बाकी तो एलएचएस वैसा का वैसे ही लिखा है, इसके अंदर कोई भी कुछ भी चेंज नहीं है। आरएचएस के अंदर भी यहाँ तक जैसा ये आरएचएस जैसा का वैसे ही है, और यहाँ पे ऐड किया अपने जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी। अब ये सिंप्लीफाई करने का है आगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में दिस एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस, या तो ये एज इट इज है, इसके अंदर कुछ भी बदल नहीं होता, यानी चेंज नहीं होता। सो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस ये जी एक्स है यहाँ पे और जी एक्स वन यहाँ पे है, तो इसमें से क्या करने का है आपको? जी कॉमन निकालने का है। सो हियर जी टेक कॉमन, यहाँ पे जी कॉमन निकाल लिया। जी कॉमन निकालने के बाद में ब्रैकेट के अंदर आपको लिखने का है, यहाँ पे जी, ये एक टर्म है और ये टर्म है, इसमें से जी कॉमन निकाला, तो यहाँ पे एक्स रहेगा, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। यहाँ पे एक्स वन है, तो यहाँ पे प्लस एक्स वन आपको लिखने का है, यहाँ पे प्लस एक्स वन। उसके बाद में प्लस एफ वाई और एफ वाई वन, ये दोनों टर्म में से एफ कॉमन निकलता है, सो एफ कॉमन निकलने का है आपको। उसके बाद में रिमेनिंग यहाँ पे y और यहाँ पे y1, यहाँ पे y1 रहता और यहाँ पे y, सो वी राइट हियर y प्लस y1, ये लिखिए। उसके बाद में राइट साइड के अंदर अपन क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन वाई वन प्लस एफ वाई वन, ये यहाँ तक मैं लिख लेता पहले। उसके बाद में एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर एज इट इज, जी एक्स वन प्लस जी एक्स वन, तो ये हो जाएगा टू जी एक्स वन, ये यहाँ पे लिख लिया। एफ वाई वन प्लस एफ वाई वन, तो यहाँ पे आ जाएगा टू एफ वाई वन प्लस दिस सी एज इट इज, प्लस सी एज इट इज। यहाँ पे भी आपको सी लिख लेने का है, ये मिस हो गया था, तो ये सी मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको ये ऑब्जर्व करने का है, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी, यानी दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन दैट इज द गिवन इक्वेशन इज सेम है। ये देखो यहाँ पे ये गिवन इक्वेशन, and here we find the equations of the tangent to this circle at the point px1 y1, that is here point px1 y1 is the point of contact of the tangent and this circle। ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल और अपन जो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट px1 y1, that is point px1 y1 lie on this circle,
point P x1 y1 lie on this circle. Therefore, point P x1 y1 satisfy the equations of the circle. तो ये सर्कल के इक्वेशन के अंदर क्या हो जाएगा, फिर x चेंजेस टू x1 हो जाएगा, y चेंजेस टू y1, because the point P x1 y1 lie on the circle. Therefore, point P x1 y1 satisfy the equations of the circle. So we write here in the next step, आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखने का है पॉइंट Px1y1 lie on the circle, और सर्कल का इक्वेशन ये है, ये सर्कल का इक्वेशन है, और इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट है Px1y1, ये वाला पॉइंट, this point lie on the circle. So we write here point Px1y1 lie on the given circle, and given equation of circle is this. Therefore, in this equation, x changes to x1. So x square changes to x1 square. ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये x1 स्क्वायर चेंज होके यहाँ पे x1 स्क्वायर हो जाएगा, because the point P x1 y1 lie on the circle. Therefore, this point P x1 y1 satisfy the given equations of circle. So y square changes to here y1 square, ये यहाँ पे चेंज हो जाएंगे. उसके बाद में x changes to ये x1 हो जाएगा यहाँ पे. So here x changes to x1. Y changes to यहाँ पे y1. So right here y1 plus c is equals to 0. यानी ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे, इसको आपको 0 करने का है, because here x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2f1 plus c equals to 0. तो यहाँ पे आपको ये राइट हैंड साइड क्या करने की है, 0 करने की है. सो LHS एज इट इज, LHS को आपको जैसा है वैसा ही लिखने का है, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करने का. ये LHS मैंने लिख लिया है. राइट हैंड साइड में ये है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f1 प्लस c, इसके बराबर यहाँ पे 0 आ गया. सो यहाँ पे 0 लिख. And this is the equations of the tangent to the general equation, that is x square plus y square plus 2gxy 2gx plus 2fy plus c equals to 0 at point p x1 y1. यानी एक स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पे यानी हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया. वो फार्मूला क्या है, द इक्वेशन दैट इज x x1 plus y y1 plus gx plus x1 plus fy plus y1 plus c equals to 0 is the equations of the tangent to the circle x square plus y square plus 2gxy plus 2fy plus c equals to 0 at point p x1 y1. यानी इस तरह एक प्रूफ आज का जो वीडियो है इसके अंदर एक प्रूफ लिया. प्रूफ कौन सा है, so to find the equations of the tangent to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 at point p x1 y1. ये प्रूफ इसके अंदर कंप्लीट किया. आई होप ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस थियरम. अगर आपको इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप यानी अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो जो ये वीडियो है इसको आप लाइक करना चाहिए आपने. और उसके बाद में जो मेरा YouTube चैनल है प्रोफेसर प्रकाश वासंतिर, उसको आप यानी सब्सक्राइब करो, तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से अपन इसका टीचिंग ले रहे हैं. ओके, आज के वीडियो में यहाँ पे यानी स्टॉप ले लेते हैं. उसके बाद में कल के वीडियो में इसके ऊपर के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके.